हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? होप यू आर डूइंग ऑल फाइन. सो टुडे we are in the platform of the learning and today we are going to discuss about the neural control and the coordination. That is the most vital topic in the NEET exam that is included in the zoology syllabus of the class 11. So in the particular chapter, in the particular topic, we are going to talk about the cells of the nervous system, the types of the neuron, especially the structure of the neuron. That is the most vital part, and the last part, that is the nerve impulse transmission, and the most important, that is action potential. So in our next slide we will see the cells of the nervous system. So in the particular nervous system we can see that there are particular two types of cell. So one particular cell is called the excitable cell and another cell is called the non-excitable cell. So here we can see there are particular two types. One is called the excitable cells. So we can write here, that is excitable cells, and another one is the non-excitable cell. Another one is the non-excitable cells. So in particular the excitable cells, this is the neuron. The excitable cells of the nervous system is called, we can call it the neuron. Why this is called the excitable? Why this is called the excitable cell? Because it can generate the nerve action potential, and it also conduct the nerve impulse or the action potential, which is also called the transmission. So we can observe here there are particular three properties of the particular neuron. That is the generation of nerve impulse. The second one is the conduction is called the conduction of nerve impulse. And the third one, and specifically the third one, that is the third one is the propagation of nerve impulse. So third one is the propagation, or we can say it the transmission. We can say it the transmission of nerve impulse. ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग देखते हैं क्या, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नॉन एक्साइटेबल. सो द नॉन एक्साइटेबल सेल इज स्पेसिफिकली we can call it the neuroglial cell. It is mainly the neuroglial cell, and in the particular NCERT book it is the most important part, जहां से बहुत क्वेश्चन आता है. एक तो स्पेसिफिक क्वेश्चन यही है कि more than 50% of the cell in the nervous system are neuroglial cell. So we can write here that more than 50% cells of the nervous system is the neuroglial cell, or that is the non-excitable. Why this is called a non-excitable cell? Because it has the other function than the specific nerve impulse generation or transmission or conduction. It has the other function like the healing, like the other function like the formation of the blood brain barrier, like other function myelin sheath formation, but it cannot generate the action potential. Cannot generate the
एक्शन पोटेंशियल। नर्वस सिस्टम ही स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाई? बिकॉज देयर आर सो मेनी मैकेनिज्म specifically in the action potential, specifically in the synaptic transmission on and the structure of the neuron. So we will go one by one. So here there are two parts of the cells of the nervous system. We can see that excitable and the non-excitable cell. So next slide, in the next slide we can see that the non-excitable cell. Non-excitable cell, there are how many types of non-excitable cell and what are their specific function, we will see one by one. Okay, so in the specific non-excitable cell, the first one is called the ependymal. The first one is called the ependymal cell. ठीक है, तो first one is called the ependymal cell. So we can write here the ependymal cell. So in the ependymal cell, if we look at the structure of the ependymal cell, we can see that this is like columnar structure with the brush border. This is like the columnar structure with the specific brush border appearance. ठीक है, so and here also this is the brush border. So we all know the brush border. What is the function of the brush border? Brush border is increase the surface area for particular absorption. मगर यहाँ पे क्या absorption का role है? What is the role of the absorption in the specific ependymal cell? We will see that. So here this is the ependymal cell, or it is here is the brush border, and brush border के साथ what is the another one? That is the presence of the cilia. Presence of the cilia. This is the ciliary cell. That is the presence of cilia. That is the presence of cilia. We can see that the presence of cilia. And what about the nucleus? What about the nucleus? We can see in the particular columnar cell. This is one type of columnar cell. So in the columnar cell, oval nucleus, the presence of the oval nucleus at the base. Presence of the oval nucleus at the base. Here is the oval nucleus at the base region. Oval nucleus at the base region. So what is the function? What is the specific function of the ependymal cell? Here we can know about the CSF. We all know about the CSF. What is CSF? CSF is called the, what is CSF? So CSF is the cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid. So here the ependymal cell can produce CSF, can absorb. So here is the role of the brush border. It can absorb the old CSF. It can absorb the old CSF. And what is the role of the cilia? The role of the cilia is the movement, the specific movement of CSF. मतलब क्या है इसका? मतलब cilia क्या करता है? cilia CSF को मोशन में रखने के लिए. So there is the movement of CSF. ठीक है, तो CSF का मेन रोल, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द CSF? अगर हम लोग CSF का लोकेशन देखें तो कहां देखेंगे? CSF का लोकेशन कहां होता है? CSF का लोकेशन होता है क्या? वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन, मेनली वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन and the central canal of the spinal cord. There is the main two system of the CNS or the central nervous system. So one is the ventricles of the brain,
one is the ventricles of the brain and another is the central canal of the spinal cord. ठीक है, तो next part we are going to, that is the next type. What is the next type? This is the next type, that is the microglial cell. The next type is called the microglial cell. ठीक है, तो देखते हैं, this is the microglial cell. ठीक है, तो माइक्रोग्लियल सेल इसका ओरिजिन क्या होता है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द माइक्रोग्लियल सेल? माइक्रोग्लियल सेल का ओरिजिन होता है क्या? मेसोडर्मल. बट the origin of the nervous system is ectodermal. So अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो क्या the origin, the previous slide में the origin is the ectodermal. It is about the ectodermal origin. But if we see the microglial cell, the origin is the mesodermal. So यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग mesodermal origin. So in the particular microglial cell, there are two types. Of microglial cell, or in the specific microglial cell, one is called the monocyte and another is called the macrophages. So one is called the what? One is called the monocyte and another is called the macrophages. So हम लोग दोनों लिख देते हैं इधर. One is called monocyte and another is called the macrophage or macrophage. So what is the role of the macrophage? Hope you all know about the role of the macrophage. This is the role of the macrophage and the monocyte is the phagocytosis. So phagocytosis, one kinds of defense mechanism. So एकदम छोटा करके बोल देते हैं, what is the phagocytosis? मान लो कोई बाहर से कोई पर्टिकुलर फॉरेन मटेरियल या कुछ भी, इफ एनी फॉरेन मटेरियल कम्स इनटू द क्लोज कांटेक्ट विद द इन नर्वस सिस्टम, द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो दिस विल engulf. So here it is the if it is the macrophages, so the role of the macrophages is to engulf the foreign material, and this is all about the phagocytosis. This is called the phagocytosis. Clear? Hope it is clear. The role of the monocyte and macrophages is phagocytosis. So why this is the mesodermal origin? Because of the presence of the blood cell. Monocyte is all about the WBC. तो WBC white blood cell, तो WBC है इसलिए क्या है? इसलिए this is the mesodermal origin. This is separated from the whole nervous system or the nerve cell are the ectodermal origin. लेकिन the microglial cell are the mesodermal origin, right? So next part or next types, we can go to the next type. Next type is the astrocyte. We can call it the astrocyte. The next type is the astrocyte. Okay, तो the next type is the astrocyte. So astrocyte, अगर हम लोग इसका सिलेबल को डिवाइड कर देंगे तो देखेंगे एस्ट्रोसाइट. साइट मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइट? साइट मतलब है सेल. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एस्ट्रो? एस्ट्रो मीन्स स्टार शेप्ड. So what will be the shape of the astrocyte? एस्ट्रोसाइट का शेप कैसा होगा? एस्ट्रोसाइट का शेप होगा स्टार जैसा, as the star. This is the astrocyte, star shaped. But
here is the most important function of the astrocyte. What is the most important function of the astrocyte? It forms the blood brain barrier. तुम लोग शायद पहले बार सुन रहे हो, BBB forms the, it forms the BBB, or we can call it the blood brain बैरियर. ब्लड ब्रेन बैरियर एक न्यू चीज तुम लोग के लिए, एक न्यू थिंग्स है. व्हाट इज द ब्लड ब्रेन बैरियर? देखो, ब्रेन इज द मोस्ट सेंसिबल पार्ट, और ब्रेन इज द कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी. सो एवरीथिंग कैनॉट गो इनटू द ब्रेन इजीली. हम लोग का बॉडी में क्या है? हम लोग का बॉडी में पूरा क्या है? ब्लड वेसल से. मान लो कुछ हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी खा रहे हैं, हाथ से खा रहे हैं, तो हम लोग को इजीली डाइजेस्टिव सिस्टम में जा सकता है, ब्लड में इजीली इन्फेक्शन हो सकते हैं. लेकिन ब्रेन में इन्फेक्शन, इट इज नॉट सो इजी. सो देयर इज ए पर्टिकुलर बैरियर, देयर इज ए पर्टिकुलर बैरियर. सो क्या होता है? मान लो दिस इज द ब्रेन, दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन सेल, दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन सेल, and here is the blood vessels, and here is the blood vessels. So the astrocyte remains in the middle portion, in the middle portion of the brain cell and the blood vessels. What is the role? It will form the blood brain barrier that acts like a selectively permeable membrane. What is that? Selectively permeable membrane. It acts like the selectively permeable membrane. What is that? Blood brain barrier choose the things which can go directly into the brain cell. It depends upon the nature and the selection of the blood brain barrier. blood brain barrier जिसको चूज करेगा वही घुस सकता है ब्रेन सेल के अंदर. So that's why we can call it also the selectively permeable membrane or the highly selectively permeable membrane. Mainly what is the function? blood brain barrier formation को छोड़ के और क्या फंक्शन होता है? ये हीलिंग और रिपेयरिंग में भी फंक्शन करते हैं. It also, so here is the number one function. We can write down the another function, that is the healing, that is the particular healing mechanism, healing or repairing. So we can write down here. So number two function is the healing and repairing. Number two function is the healing and the repairing. So here are three types of ependymal cell, microglial cell, astrocyte, but last but not the least, that is particular the Schwann cell, that is particular the Schwann cell and the oligodendrocyte. Why the two cells remains with each other, Schwann cell and the oligodendrocyte? Because their function are almost similar. So in the fourth part we can write it, the Schwann cell and we can write down the Schwann cell and Schwann cell and the oligodendrocyte and the oligodendrocyte. Schwann cell and the oligodendrocyte. ठीक है. Schwann cell, ये Schwann cell वही Schwann है जो सेल थ्योरी बोला था, the same Schwann cell name उसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट के नाम से होता है जो सेल थ्योरी, स्लेडियन एंड Schwann वाज द स्पेसिफिक जूलॉजिस्ट. सो उसके ही नाम से है क्या? ये Schwann cell. तो इन दोनों का फंक्शन स्पेसिफिकली क्या होता है?
they form the myelin sheath. We will see when we will see the structure of the neuron or the structure of the nerve cell, we can see the myelin sheath. So इन दोनों का function क्या होता है? Formation of myelin sheath, formation of the myelin sheath. लेकिन देखो दोनों का फंक्शन सेम ही होता है, फॉर्मेशन करना माइलिन शीथ को, लेकिन पोजीशन अलग और लोकेशन अलग होता है. व्हाट विल बी द लोकेशन क्या क्या होता है? स्वान सेल का लोकेशन क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. स्वान सेल का लोकेशन क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ फॉर्मेशन करते हैं. और ओलिगोडेंड्रोसाइट ये कहां फॉर्मेशन करते हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट फॉर्म द माइलिन शीथ in the central nervous system, that is the brain and the spinal cord. तो brain and the spinal cord में जो न्यूरॉन होते हैं, the neuron that is located in the brain in the spinal cord region, oligodendrocyte form their myelin sheath. And brain and spinal cord को छोड़ के और body का those portion of the body except the brain and the spinal cord, the neuron the Schwann cell form the myelin sheath. ठीक है, तो एक बार हम लोग छोटा करके रिकैप कर लेते हैं. नॉन एक्साइटेबल सेल क्या क्या होता है? वन इज द एपेंडाइमल सेल, जो दिखता है कैसा, जिसमें क्या क्या होता है? ब्रास्ट बॉर्डर एंड सिलिया होता है. ओवल सेल, ओवल न्यूक्लियस होता है बेस में. इसका फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन? सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड है उसका प्रोडक्शन करना और एब्जॉर्प्शन करना एंड मूवमेंट करना, स्पेसिफिकली एंड इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड रीजन. And in the microglial cell, next is the microglial cell, that is the mesodermal origin, separate from the other types of the cell in the nervous system, that is specifically monocyte and the macrophages. So monocyte and macrophages is function क्या होगा बच्चों? What will be the function? The function is the phagocytosis. And the third one is the astrocyte. Astro याद रखना, क्या बोला मैंने कुछ टाइम पहले ही बोला, astro मतलब star shape and cyte मतलब cell. So this is the star shaped cell, and here are the two function. One is the most important function, that is the blood brain barrier formation. That is one kind of selectively permeable membrane. What is the selectively permeable membrane? So brain ये membrane जिसको select करेगा और ये barrier जिसको select करेगा वही only जा सकता है कहाँ? ब्रेन सेल में, दूसरा चीज नहीं जा सकता है. Entry restricted है. And the next one is healing and the repairing of the nervous system. And the fourth one is the Schwann cell and the oligodendrocyte. दोनों एक साथ क्यों है? Because दोनों का फंक्शन सेम है. ठीक है, तो फंक्शन क्या है उनका? फॉर्मेशन ऑफ द माइलिन शीथ. तो माइलिन शीथ फॉर्मेशन कहाँ करते हैं? स्वान सेल करता है पीएनएस में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट कहाँ करता है? सीएनएस में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. ठीक है, तो ये हो गया. हम लोग जाते हैं नेक्स्ट साइड में. तो दैट इज द एक्साइटेबल सेल. Previous one was the non-excitable cell and the excitable cell. What is the excitable cell? The excitable cell is the neuron. We can call it the neuron is the excitable cell. ठीक है, this is a neuron को क्या बोलते हैं हम लोग? Neuron is called the structural and functional unit of the nervous system. So here we can see the three important parts of the neuron. The first one is the dendrites. So we can call it, the first one is the dendrites. ठीक है, dendrites. And the second one is the क्या बोल सकते हैं हम लोग? सेकेंड वन का बहुत टाइप का सिनोनिम्स है. वन इज, इट कैन आल्सो कॉल द सेल बॉडी. कभी कभी इसको बोलते हैं क्या हम लोग? साइटोन. कभी कभी इसको बोलते हैं क्या? पेरिकैरियन. तो इसका तीनों नाम क्या क्या है? इसको हम लोग बोल सकते हैं सेल बॉडी और साइटोन और न्यूक्लियस के साइड में होता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कैरियर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पेरिकैरियन. It is called the perikaryon, right? So the third part is the
axon. The third part is the क्या, that is the axon. तो छोटा करके एकदम स्मॉल करके हम लोग एक एक का फंक्शन देख लेते हैं. तो क्या करता है, what is the function of the dendrites? These receive the stimulus. These receive the stimulus. Stimulus कौन रिसीव करता है? रिसीव करता है dendrites. Dendrite receives the stimulus. Stimulus receive करता है कौन? Dendrite. Dendrite is the particular branches or the processes. And what is the role of the cell body? Convert the stimulus into the electrical impulse. तो क्या करता है? What is the function of the cell body? It will convert the stimulus into the electrical impulse. And what about the axon? Axon का फंक्शन क्या होता है? कंडक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ द impulse. We can say the conduction or transmission of the electrical impulse. Conduction or transmission of the electrical impulse. So here is the three parts. The first one is the dendrites that will receive the stimulus, and the second one is the cell body or cyton or perikaryon that will convert the stimulus into the electrical impulse, and last but not the least, that is the axon. Axon का function क्या होता है? Axon का function होता है उस particular electrical impulse को transmission. So what is the transmission? From one space to another, from one region to another. उसको पहुंचाने का काम किसका होता है? कंडक्शन का काम किसका होता है? एक्सन का. So here is the three parts of the excitable cells. ठीक है, तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में. That this is the structure. This is the particular structure of the neuron. तो देखो, अगर जूलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी तुम लोगों को पढ़ना है तो तुम लोग को ड्राइंग का पैशनेट होना चाहिए. ड्राइंग मतलब तुम लोग को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि एनाटॉमी के अलावा तुम लोग you cannot read or understand a specific structure of the human body without the anatomical location, without the proper structure. So you have to practice drawing of specific structures. वो आई का स्ट्रक्चर हो सकता है, वो मसल का स्ट्रक्चर हो सकता है. तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ हम लोग देख रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. तो लेट्स ड्रॉ टुगेदर. तुम लोगों का कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो अगर नोट ले रहे हो तो. ठीक है, तो इधर देखते हैं क्या एक पर्टिकुलर न्यूरॉन और नर्व सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. राइट, ठीक है. Here we are going to draw the particular dendrites. So this is the dendrite. This is the structure of the, मैं बोल ही देता हूँ, this is the structure of the particular डेंड्राइट्स. लग सकता है कि भूत जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये भूत जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई हॉरर फिल्म का स्ट्रक्चर नहीं है. दैट इज द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द डेंड्राइट्स. दिस इज द डेंड्राइट स्ट्रक्चर. सो डेंड्राइट्स के बाद ये सब क्या है हम लोग देखते हैं एक एक करके. दिस इज द ऑल आर डेंड्राइट्स. एक एक करके एक बार पूरा पिक्चर ड्राइंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन क्या स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो इसके बाद हम लोग येलो कलर ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को ड्राइंग करना है क्या,
So here we can see the particular structure of the neuron. So in the structure of the neuron we can see that these are the processes, those are called the dendrites. These are the processes, those are called the dendrites. So here we can mark it, the डेंड्राइट्स. ठीक है, तो डेंड्राइट्स के बाद यहाँ पर जो पोर्शन हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पर जो पोर्शन हम लोग को दिख रहा है वहां पर अंदर क्या होता है, दिस इज द न्यूक्लियस. ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाद हम लोग देख सकते हैं देयर आर सम ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर in the cell body. Here is the parts of the cell body. This is the total parts of the cell body. Here is the total parts of the cell body or cyton, and this is the nasal granules, and this is the nasal. This is the nasals granules. This is the, according to scientist के नाम पे है nasals granules. What is the nasal granules? पहले हम लोग को पता नहीं था कि nasal granules क्या है, बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला क्या है. It is formed by the ribosome and the endoplasmic reticulum. So that is the rough endoplasmic reticulum. इसका काम क्या है? What is the function? Protein synthesis. इसका काम क्या होता है? Protein synthesis. और भी बहुत सारी चीज है इसमें. यहाँ पर छोटा छोटा ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर. Those fiber like structure are called the neurofibrils. Those fiber like structure are called neurofibrils. So here is the part of the dendron, and dendron के पार्ट में जो branches like structure है, those are called the dendrites. ठीक है, तो एक्सन स्टार्ट होता है कहां से? एक्सन स्टार्ट होता है यहां से. तो देखो कि देयर इज ए जंक्शन और देयर इज ए जंक्शनल पार्ट बिटवीन द डेंड्रन एंड द एक्सन. So this particular part is called the axon hillock. This particular part is called the axon hillock. Axon hillock is the part of the dendron. It is not the part of the axon. It is the junction between the dendron and the axon. Here it is the axon. This whole part is called the axon, right? So in the particular axon we can see there are particular many numbers of myelin sheath. So myelin sheath हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इधर. This is the particular, हम लोग देख सकते हैं क्या? This is the particular myelin sheath. This structure is called the myelin sheath. ठीक है,
तो ये अगर माइलिन शीथ का स्ट्रक्चर है तो हम लोग देख सकते हैं कि एक माइलिन शीथ से दूसरे माइलिन शीथ के बीच में क्या है, दूसरे माइलिन शीथ के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, थोड़ा थोड़ा पर्टिकुलर देयर इज सम गैप बिटवीन द माइलिन शीथ। सो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइलिन शीथ। एंड माइलिन शीथ के बाहर, माइलिन शीथ के जस्ट बाहर वाले रीजन में क्या होता है, स्वान सेल। एकदम एक स्वान सेल इज कनेक्टेड विथ अनदर स्वान सेल, ठीक है। सो हियर इज द स्वान सेल। Here is the swan cell, and in the swan cell there is also present the presence of the nucleus. Here is also the presence of the nucleus. So this is the swan cell, and this particular is called the nucleus of swan cell, nucleus of the swan cell. And in this the cytoplasm of the axon, is called the exoplasm, and the membrane of the exoplasm or axon is called the axolemma, ठीक है। तो इधर क्या है, माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस बट the swan cell is continuous. Myelin sheath is discontinuous in structure, but the swan cell is continuous in structure, right? So the layer, the outside the myelin sheath, that is called the outside the myelin sheath or the outside of the particular swan cell is called the neurolemma. The outside of the swan cell, this is called the neurolemma. This is called the neurolemma. ठीक है, okay. So between two adjacent myelin sheath there is a structure. Between two adjacent myelin sheath there is a structure. Between two adjacent myelin sheath there is a structure that is called the node of Ranvier. रणवीर कपूर नहीं, हाँ, तो that is called the node of Ranvier. This is called the node of Ranvier. कहाँ पे लिखे, अच्छा इधर लिख देते हैं, this is called the this particular is called the node of Ranvier. Node of Ranvier, ठीक है। एंड एक्सन के एकदम एंड पोर्शन दैट इज कॉल्ड द एक्सन टर्मिनल. हियर दिस पार्ट इज कॉल्ड द एक्सन, टर्मिनल. एक्सन टर्मिनल के एकदम एंड पोर्शन, द एंड पोर्शन ऑफ द एक्सन टर्मिनल is called the terminal knobs or synaptic knobs. It is called the terminal knobs or synaptic knobs. ठीक है, this is called the terminal knob. What is located in the terminal knob? Terminal knob में स्पेशली क्या होता है, टर्मिनल नॉब में होता है क्या, साइनेप्टिक वेसिकल, जिसमें रहते हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर. मेनली टर्मिनल नॉब में क्या रहता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिसके अंदर क्या रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है?
Hope there are no doubts in the particular structure of the neuron or the particular structure of the neuron or nerve cell. It is clear there are three particular parts. One is called the dendron or dendrites. Dendron का branches को हम लोग बोलते हैं क्या? Dendrites, and this portion is called the, this particular portion is called the cell body. This particular portion is called the cell body. और सेल बॉडी के बाद द जंक्शन इज कॉल्ड द एक्सन हिलम. एक्सन हिलम के बाद स्टार्ट होते हैं कौन? एक्सन. एक्सन में क्या होता है? एक्सन में होता है द डिसकंटीन्यूअस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द मायलिन शीथ. लेकिन सब न्यूरॉन में मायलिन शीथ नहीं रहते हैं. हम लोग देखेंगे द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सा होता है, टाइप्स क्या क्या हो सकता है. तो उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग क्या देखें उसके बाद मायलिन शीथ का आउटर कवरिंग दैट इज कॉल्ड द स्वान सेल, दैट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर स्वान सेल. तो स्वान सेल में क्या होता है? स्वान सेल में रहते हैं न्यूक्लियस. स्वान सेल इज द प्रोटेक्टिव यूनिट. स्वान सेल इज पर्टिकुलरली द प्रोटेक्टिव यूनिट. एंड दो मायलिन शीथ के बीच में, एंड दो देयर इज द पर्टिकुलर टू मायलिन शीथ के बीच में क्या रहते हैं? दिस इज द इट इज कॉल्ड द नोड ऑफ रैनवियर. इट इज कॉल्ड द नोड ऑफ रैनवियर. ठीक है. तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. ठीक है. तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं क्या? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. हम लोग देखते हैं कितना टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होता है. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोसेस. प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस मतलब होता है एक्सन है या डेंड्रन है या क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द डेंड्रॉन्स और नंबर ऑफ द एक्सन्स. तो क्या है उसके बेसिस में हम लोग देखेंगे. तो देयर आर मेनली द 5 टाइप्स. देयर आर मेनली द 5 टाइप्स. तो देख लेते हैं एक एक करके. ठीक है. ओके. तो देख लेते हैं एक एक करके कौन कौन है इधर. हियर इज वन, here is one and another is this. Okay, so the first type is, we can call it the apolar. We can call it the apolar neuron. We can call it the apolar. एपोलर मतलब क्या है? एपोलर मतलब कोई पोल नहीं. पोल नहीं मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एपोलर? मीन्स here it is only the cell body, only the cell body is present here, only the cell body, and इसके बीच में nucleus is present here. So we can write down only the cell body, but there is no axon or no dendron. नो डेंड्रन और नो डेंड्राइट, कुछ भी लिख सकते हैं. सो हियर इज ओनली द सेल बॉडी. एग्जांपल हम लोग देखें तो किसका बॉडी में रहता है? दिस रिमेन्स इन द बॉडी ऑफ सिलेंटरेटा. सिलेंटरेटा हम लोग एनिमल किंगडम में, शायद तुम लोग पढ़े हो एनिमल किंगडम में, सिलेंटरेटा. ठीक है. सिलेंटरेटा के बॉडी में क्या होता है? ये पर्टिकुलर एपोलर न्यूरॉन. तो एपोलर के बाद जिसमें हम लोग आते हैं दैट इज कॉल्ड द यूनिपोलर. दैट इज कॉल्ड द यूनिपोलर न्यूरॉन. यूनिपोलर में हम लोग क्या देखेंगे? यूनिपोलर में हम लोग देखेंगे देयर इज वन पोल. वन पोल मतलब क्या है? वन पोल मतलब सेल बॉडी एंड एक्सन. सेल बॉडी एंड एक्सन. क्या क्या है इसमें? सेल बॉडी है और एक एक्सन है. दैट इज द यूनिपोलर. यूनिपोलर का एग्जांपल, यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ रहते हैं? एम्ब्रायो ऑफ द वर्टिब्रेट्स. तो इसका लोकेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम्ब्रायो ऑफ द वर्टिब्रेट्स. ठीक है. एम्ब्रायो ऑफ द वर्टिब्रेट्स. Next one is called the bipolar. Next one is called the bipolar. ठीक है. तो next one is called the bipolar.
बाइपोलर मतलब क्या है? बाइपोलर मतलब सेल बॉडी से वन एक्सन एंड वन डेंड्रन। सेल बॉडी से क्या? देयर इज वन एक्सन एंड वन dendron, right? So what will be the location of the bipolar neuron? Bipolar neuron mainly कहाँ होते हैं? In the olfactory epithelium, in the olfactory epithelium and कहाँ होगा? रेटिना, आई का जो रेटिना है उसमें होता है बाइपोलर न्यूरॉन। रेटिना ऑफ आई, उसमें क्या होता है? बाइपोलर न्यूरॉन। The next type is the pseudo unipolar. The next type is the pseudo unipolar. Pseudo मतलब क्या है? Pseudo, what is the meaning of the pseudo? Pseudo means fake. Unipolar, so हम लोग देखते हैं क्या? Pseudo unipolar कैसे दिखेगा? देखो, सेल बॉडी से एक ही पर्टिकुलर प्रोसेस, सेल बॉडी से एक ही पर्टिकुलर प्रोसेस निकलने वाले थे, लेकिन क्या हुआ? निकलने के टाइम ये बन गया दो पर्टिकुलर प्रोसेस। सो एक ही प्रोसेस निकलने वाले थे, दैट्स मीन्स ये यूनिपोलर होना चाहता था, लेकिन क्या हो गया बाइपोलर। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट द स्यूडो यूनिपोलर। सो इधर में क्या है? इधर में डेंड्रन, दिस इज द एक्सन, राइट? और एक डेंड्रन, एक एक्सन। तो ये कहा? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन? द लोकेशन ऑफ द स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन विल बी इन द डॉर्सल रूट गैंग्लिया। डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ, डॉर्सल रूट गैंग्लिया कहां रहते हैं? ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ऑफ द spinal cord. And the last one is the multipolar neuron. Last one is the multipolar neuron. Multipole, what do you mean by multipole? Multipole मतलब एक्सन भी रहते हैं एंड बहुत सारा डेंड्राइट्स रहते हैं। multipolar, what do you mean by the multipolar neuron? नंबर सिंगल एक्सन, इसका मतलब क्या है? What is the meaning of the multipolar? Single axon and क्या होता है? And multiple number of dendrites. Multiple number of dendrites. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा दिस फिगर इज द एग्जाम्पल। हम लोग पिछले स्लाइड में जो फिगर ड्राइंग किए, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, दिस इज द मल्टीपोलर। देखो यहाँ पे एक एक्सन है, एक एक्सन के साथ बहुत सारा क्या है? डेंड्राइट्स है। दिस इज द मल्टीपोलर। सो हम लोग क्या देखे इधर? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सो हम लोग क्या देखे इधर? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट में जाते थे टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ द माइलिन सीथ। ऑन द बेसिस ऑफ द माइलिन सीथ। सो माइलिन सीथ के बेसिस में अगर डिवाइड करेंगे, सो देयर आर मेनली टू टाइप्स। सो देयर हियर मेनली टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड द माइलिनेटेड और मेड्यूलेटेड। वन इज कॉल्ड द माइलिनेटेड और मेड्यूलेटेड and another is called the non myelinated या non medullated। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। here is the myelinated and here is the non myelinated। so here is the myelinated and here is the non myelinated, right?
सो माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड में क्या है, देखो पहले देख लेते हैं हम लोग नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड में क्या होते हैं, जो एक्सन है वो माइलिन शीथ को, वो पर्टिकुलर माइलिन शीथ और स्पेसिफिक बोले तो स्वान सेल को एकदम डायरेक्टली इनर्वेट कर जाता है, एकदम डायरेक्टली इनर्वेट कर जाता है। मान लो कि दिस इज द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द स्वान सेल, ठीक है, दिस इज द पर्टिकुलर न्यूक्लियस, दिस इज द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द स्वान सेल। सो द एक्सन कैसे होता है, ऐसे, मतलब बीच में से। if particular here is the paper, if particular here is the paper, तो पेपर को ऐसे क्या करता है, इनर्वेट करके। इफ दिस इज द एक्सन एंड दिस इज द पर्टिकुलर स्वान सेल, ऐसे ही इनर्वेट करके जाता है, ठीक है बच्चों। सो हियर इज द, दिस इज द एक्सन। सो हियर इट इज द, इफ हम लोग एक बार लिख लेते हैं, एक्सन इनर्वेट्स through the swan cell. Here it is the non-myelinated, because यहाँ माइलिन शीथ नहीं होता है, राइट। एंड मानो in the case of myelinated, if this is the, थोड़ा सा और सही करके ड्राइंग करते हैं, if this is the myelin sheath, तो एक्सन क्या होता है, एक्सन उसको स्पाइरली ऐसे बाइंड कर देता है, ठीक है, उसको ऐसे स्पाइरली बाइंड कर देता है, ठीक है। सो यहां पर क्या होता है, स्पाइरल रैपिंग ऑफ द स्वान सेल, spiral wrapping of the swan cell leads to the formation of the myelin sheath। तो myelin sheath कैसे बनता है, देखो myelin sheath का अगर फॉर्मेशन देखे, so here is the myelin स्ट्रक्चर तो हम लोग पहले देख चुके हैं। तो myelin sheath कैसे फॉर्मेशन होता है, इट इज द लिपिड रिच लेयर, इट इज द स्पेसिफिक लिपिड रिच लेयर। So in case of myelinated, it is whitish in structure, it is the whitish in nature or structure, जो भी बोलोगे। And here in case of non-myelinated, myelin sheath नहीं होता है, मतलब lipid content is reduced in the non-myelinated, that's why it is grayish in nature, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंपल्स कंडक्शन की बात करें और एक्शन पोटेंशियल की ट्रांसमिशन की बात करें, तो कौन सा पर्टिकुलर न्यूरॉन में ज्यादा कंडक्शन या ट्रांसमिशन रेट विल बी हायर, ट्रांसमिशन रेट हायर होगा माइलिनेटेड में, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ क्या होता है, माइलिन शीथ मेनली होता है इंसुलेटर, वन काइंड ऑफ इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। सो दैट्स व्हाई द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स यहां पे कैसे होता है, ऐसे होता है, मतलब फ्रॉम वन नोड ऑफ Ranvier टू अनदर नोड ऑफ Ranvier, जंपिंग एक्शन, दिस इज कॉल्ड द सल्टेटरी कंडक्शन, और जंपिंग कंडक्शन। मानो कि एक फ्रॉग है, ठीक है, एक फ्रॉग है और एक टॉर्टोइस है, तो एक फ्रॉग कैसे जा रहा है, ऐसे जंप करके जा रहा है, ठीक है, एक डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस दोनों ही कवर कर रहा है। एक फ्रॉग कैसे जा रहा है, जंप करके जा रहा है, तो जंप करके जाने से क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा,
The same thing is also applicable in here. In the case of myelinated neuron, क्या हो रहा है? There is solitary conduction. मगर यहाँ पे क्या है? In the case of non-myelinated, there is no myelin sheath. So यहाँ कैसा ट्रांसमिशन होता है? Throughout the axon ट्रांसमिशन होता है. तो ट्रांसमिशन रेट इज स्लोअर. यहाँ पर इन केस ऑफ नॉन माइलिनेटेड क्या होगा? ट्रांसमिशन और कंडक्शन इज slower, and here the conduction is faster, that is called the saltatory conduction, right? तो समझ में आया कि myelinated and non myelinated में what are the difference, what are the color difference, how the myelin sheath is formed. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्या? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द पर्टिकुलर बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. तो बेसिस ऑफ देयर फंक्शन में क्या देखेंगे? देखो, हम लोगों को मान लो कोई ना कोई स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस, एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस, इट कैन बी एनी टच सेंसेशन, एनी पेन सेंसेशन, any kinds of heat, any kinds of cold sensation, any kinds of sensation that is coming into our body as a stimulus, as a particular stimulus. So here we can write that the stimulus is coming. Okay, so the stimulus is coming. Stimulus कहां पर आएगा? Stimulus आएगा एक पर्टिकुलर लोकेशन में, that is called, here is the skin. The skin acts as a receptor. The skin acts as क्या होगा? रिसेप्टर. ओके, सो कहां आया? इंपल्स और स्टिमुलस कहां आया? रिसेप्टर में. सो रिसेप्टर, फ्रॉम द रिसेप्टर it will go to the CNS or central nervous system. So it will go to the central nervous system. ठीक है, from receptor it will go to the central nervous system through a particular nerve. It will go to the central nervous system. The nerve or the particular neuron that will carry the stimulus or impulse, जो भी बोलो, from the receptor to the central nervous system is called the afferent neuron. It is called the afferent neuron or sensory neuron. So it is called the afferent neuron or the sensory neuron, right? So afferent neuron or the sensory neuron. From the CNS, the response will go to the कहां जाएगा? response to the effector. मानो हम लोगों को एक मच्छर ने काट दिया, राइट? तो मच्छर ने काट दिया तो क्या होगा? इफ द मॉस्किटो बाइट अस, तो क्या होगा? स्किन में क्या होगा? दर्द होगा, पेन होगा. तो पेन होगा तो वो पर्टिकुलर पेन सेंसेशन दैट आल्सो एक्ट लाइक अ स्टिमुलस. द पेन सेंसेशन विल गो टू द CNS or central nervous system through the afferent or sensory neuron, right? So from the CNS में जाके क्या होगा? वो पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है प्रोसेस होगा. प्रोसेस होने के बाद ब्रेन हम लोगों को क्या बोलेगा कि मच्छर को ऐसे मार दो, तो ये हाथ इधर जाएगा, राइट? तो इधर जाएगा मतलब दिस हैंड्स विल एक्ट एज ए इफेक्टर. वो इंपल्स तो आना चाहिए हाथ तक. दैट इंपल्स विल कम इनटू द हैंड्स और मसल इन द हैंड्स. सो फ्रॉम द CNS, the neuron that carry the response is called the efferent neuron or motor neuron. The neuron that carry the response from the CNS towards the effector is called the efferent neuron or motor
neuron, right? Efferent neuron or the motor neuron, right? लेकिन there is a condition और there is a specification बोल सकते हो तुम लोग कि CNS में कौन है जो afferent neuron that will convert the afferent neuron into the motor neuron. There is something that will convert the afferent neuron into the motor neuron, or there is some connection between the afferent and the efferent neuron. Here it is called the interneuron or associated neuron. It is called the interneuron or associated neuron. It is called the interneuron or associated neuron. So on the basis of the function हम लोग क्या देख सकते हैं, स्टिमुलस आ रहा है कहाँ, स्टिमुलस रिसेप्टर में आ रहा है. फ्रॉम द रिसेप्टर the impulse will go to the central nervous system via the afferent or the sensory neuron, and from the central nervous system में क्या हो रहा है, central nervous system में afferent neuron के साथ efferent neuron that will carry the impulse towards the effector, that will carry the response or impulse towards the effector, and there the connection is the interneuron that will connect the afferent with the efferent neuron. ठीक है. सो होप तुम लोग को ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो हम लोग एक बार और रिकैप कर लेते हैं. ठीक है, और रिकैप करके देख लेते हैं कितना कितना हम लोग टाइप्स पढ़े यहाँ. ओके, सो हम लोग पहले देखे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, एक बार देख लेते हैं कौन सा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोसेस, एपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, स्यूडो यूनिपोलर एंड द मल्टीपोलर. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, प्रेजेंस ऑफ द माइलिन शीथ हम लोग क्या देखे, माइलिनेटेड एंड द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, राइट. एंड द लास्ट वन हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन के बेसिस में क्या देखे, एफरेंट होते हैं, इंटरन्यूरॉन होते हैं, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द efferent neuron. In the next we will go to the action potential, that is the most important topic. We will go to the action potential, right? So in this slide we are going to talk about the action potential, that is the nerve impulse conduction. तो नर्व इम्पल्स, व्हाट इज द नर्व इम्पल्स. तो नर्व इम्पल्स अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि मानो दिस इज ए पर्टिकुलर और पर्टिकुलर, दिस इज ए पर्टिकुलर सेल, एनी काइंड्स ऑफ सेल. ठीक है, तो if this is a particular cell, so there are two parts, one is called the intracellular part, another is called the extracellular part. So हम लोग इधर लिख सकते हैं कि this is the ICF और intracellular fluid region, and this is called the ECF. ECF means this is the extracellular fluid and this is the intracellular fluid. So there is difference between the intracellular fluid and the extracellular fluid, that is the distribution of the ions, the difference in the distribution of the ion. ऐसा होता है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कुछ आयन, मान लीजिए कुछ कैटायन या कुछ एनायन ज्यादा हो सकता है, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, कुछ आयन, कैटायन या एनायन कम या ज्यादा हो सकते हैं. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयन. सो दैट्स व्हाई दिस इज जनरेटिंग द नर्व इम्पल्स. तो नर्व इम्पल्स अगर हम लोग बात करेंगे कि एक्सोप्लाज्म, हम लोग पिछले स्लाइड में क्या देखे थे, पिछले स्लाइड में देखे थे कि एक्शन से, एक्शन बाय द एक्शन क्या होता है, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है, राइट. तो कंडक्शन हम लोग कब बोलेंगे, तो देयर आर थ्री पार्ट्स. सो वन इज कॉल्ड द, सो फर्स्ट वन इज कॉल्ड द नर्व impulse,
generation. Nerve impulse generation होता है किस लिए? Why? Because there is the difference in the distribution of the ions between the intracellular space and the extracellular space. And after the nerve impulse generation, there is the conduction of nerve impulse through the axon, or particularly through the exoplasm. Okay, so the next point is the conduction of the nerve impulse, and the third is called the transmission, and the third is called the transmission. So there are three parts. One is generation of the nerve impulse, the second one is the conduction of the nerve impulse, and the third one is the transmission of the nerve impulse. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कैसे ये दिस विल जनरेट द action potential. And what about the action potential, how much there are component of the action potential, so how many types are the component, and ये सब देखेंगे कैसे हम लोगों का ये जो इंटरसेलुलर स्पेस एंड एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में कैसे आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये देखेंगे हम लोग. तो हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. So this is the particular this membrane. यहाँ हम लोग देख रहे हैं, मैंने एक पिक्चर बनाया है कि these are all the channels, those are responsible for the transferring of the different kinds of ions. तो हम लोग पिछले स्लाइड में क्या बोले? There is the distribution of the cations and anions between the intracellular space and the extracellular space. तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है मैक्सिमम टाइम अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? एक्शन पोटेंशियल समझने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो लाइन लिखा हुआ है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. तो हम लोग थोड़ा इजी करके और थोड़ा डिटेल्स में बोलेंगे कि कैसे यहाँ पर नर्व इंपल्स जनरेशन हो रहा है, कैसे यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल फंक्शन कर रहे हैं, व्हाट इज पर्टिकुलर एक्शन पोटेंशियल. तो दिस इज द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सोप्लाज्म, राइट. तो एक्सोप्लाज्म का बाहर वाले जो पर्टिकुलर क्या है, बाहर वाला जो पर्टिकुलर लेयर है, दैट इज कॉल्ड द एक्सोलेमा. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? एक्सोलेमा. दिस इज द एक्सोप्लाज्म. एंड यहां पर एक चीज याद रखना पड़ेगा. कौन सा चीज याद रखना पड़ेगा? एक चीज याद रखना पड़ेगा कि इंट्रासेलुलर स्पेस मतलब अंदर वाला हिस्सा ऑफ द एक्सोप्लाज्म में क्या होता है? पॉजिटिव नहीं, बिल्कुल अंदर वाला हिस्से में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज. ओके, एंड द आउटसाइड ऑफ द एक्सोप्लाज्म इज पॉजिटिवली चार्ज. तो हम लोग क्या देखे? inside the exolemma there is the negative charge, and outside the exolemma there is the positive charge. Why? Because यहाँ पर एक चीज देखना पड़ेगा, because in the intercellular space, और इसको हम लोग बोल सकते हैं ICF, इसको हम लोग बोल सकते हैं ECF. that is the ICF मतलब इंटरसेलुलर फ्लूइड एंड द ECF मतलब क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. तो ICF में व्हाई देयर इज नेगेटिव चार्ज? बिकॉज देयर इज, उसमें क्या होता है? वहां पर होता है एनायंस, और द एनायंस आर द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन. तो यहां पर क्या होता है? एनायन इज ग्रेटर देन द कैटायन. व्हाई देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एनायन? Presence of anion because of the negatively charged protein, right? तो यहां पर क्या है? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, जिसके वजह से क्या हो रहा है? जिसके वजह से anion is greater than the cation, that's why the negative charge is implies here. और बाहर वाले स्पेस में मतलब इन द एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, वहां पे क्या होता है? वहां पे cation, the number of cation is greater than the number of anion, right? और एक चीज हम लोग देख रहे थे, ये थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए कि अंदर में होता है K प्लस इज हायर, एंड बाहर में होता है क्या? Na प्लस.
is higher, right? So हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन. रेस्टिंग मेम्ब्रेन मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द रेस्टिंग मेम्ब्रेन? रेस्टिंग मेम्ब्रेन मतलब जब कोई इंपल्स अभी तक ये पर्टिकुलर एक्सन का जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर नहीं आया है, कोई भी इंपल्स अभी तक नहीं आया है, तब एक मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन में होता है. और रेस्टिंग कंडीशन में तब ये एक्सोप्लाज्म का, दिस इज मेनली एक्सोप्लाज्म, तो एक्सोप्लाज्म का वोल्टेज कितना होता है? दैट इज द -70 मिलीवोल्ट. वोल्टेज विल बी -70 मिलीवोल्ट. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. इसको हम लोग बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, राइट? तो इसको हम लोग कैसे मतलब मेजर करेंगे? एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, बाय द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड हम लोग मेजर कर सकते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, राइट? सो व्हाई दिस इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन और व्हाई दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग? बिकॉज देयर इज द नेगेटिव चार्ज, the amount of the negative charge is high in the inside and the amount of the positive charge is high in the outside region. So that's why यहाँ पे क्या हो रहा है? That's why यहाँ पे it will perfectly indicate a kinds of polarity. और रेस्टिंग मेम्ब्रेन को हम लोग और एक दूसरा टर्म में बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन. पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, राइट? तो ये समझ में आ गया. कोई भी अभी तक इंपल्स नहीं आया है इधर, तो अगर कोई भी देयर इज नो इंपल्स कमिंग इनटू द पर्टिकुलर एक्सोलेमा और पर्टिकुलर एक्सोप्लाज्म, सो इट इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन. मतलब मेम्ब्रेन रेस्ट में है, कोई भी इंपल्स अभी तक नहीं आया है. तो ड्यूरिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इनसाइड द एक्सोलेमा दैट इज द negatively charged and outside the exolema that is the positively charged. Positively charged क्यों है? Because there is the number of cation is higher than the anion, and inside due to the negatively charged protein anion is higher than the cation, that's why the negative charge, right? और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं what are these are called the channel proteins. These are called the channel protein. These proteins are located above the exolema और एक्सोनल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चैनल होते हैं. ठीक है, ओके. सो हियर वी कैन सी देयर आर टू चैनल्स. दीज आर कॉल्ड द लीकी चैनल्स. लीकी चैनल का मतलब क्या है? लीकी चैनल मतलब जिसमें से ऑल टाइम आयन का फ्लो होते रहते हैं, राइट? सो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन सा लीकी चैनल है. दिस इज द पकड़ लेते Na+ और सोडियम लीकी चैनल, एंड दिस इज द K+ और पोटेशियम लीकी चैनल, राइट? ओके. एंड व्हाट आर दिस? These are called the voltage gated channel. These are called voltage gated channel. और voltage gated channel मतलब ये all time these channels are all time always not open, right? These channels are open when a particular voltage or a particular membrane potential is reached. उसको हम लोग देखेंगे कब ये चैनल ओपन होता है, कब ये चैनल क्लोज होता है. लेकिन ऑल टाइम ये चैनल कैसा रहता है? ये चैनल क्लोज रहता है. नॉर्मल, इन केस ऑफ द नॉर्मल टाइमिंग ये चैनल क्लोज रहते हैं. लीकी चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, राइट? तो यहां पर भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर भी कौन सा चैनल है. देयर आर Na+ एंड इट इज द K+. सो हम लोग लीकी चैनल में भी सोडियम पोटेशियम चैनल है एंड वोल्टेज गेटेड चैनल में भी सोडियम पोटेशियम चैनल है. एंड अगर हम लोग इधर देखेंगे तो हियर इज द पर्टिकुलर सोडियम पोटेशियम ADPase, दैट इज कॉल्ड द सोडियम पोटेशियम पंप. इट इज कॉल्ड द Na+
K plus pump और Na plus K plus ATPase, ठीक है। ओके, तो ड्यूरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल और ड्यूरिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन और द रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, रेस्टिंग कंडीशन में तो सोडियम इज हायर इन द आउटसाइड रीजन एंड द पोटेशियम इज हायर इन द इनसाइड रीजन। ओके, सो हम लोग देखेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, जहां पे सोडियम और जहां पे आयरन कंसंट्रेशन इज हायर, मतलब जहां पे आयरन कंसंट्रेशन ज्यादा होते हैं वहां से आयरन कहां पे मूव करते हैं, जहां पे आयरन कंसंट्रेशन कम होते हैं। तो बच्चों बोलो कि सोडियम कंसंट्रेशन कहां ज्यादा है, सोडियम कंसंट्रेशन इज हायर इन द आउटसाइड रीजन, राइट। सो सोडियम कहां आएगा, कहां से, तो Na plus will move inside the particular axolemma or axonal membrane। ओके, तो सोडियम बाहर से आएगा अंदर, राइट। एंड पोटेशियम कहां जाएगा, potassium concentration is higher in the inside, so the potassium will go to the आउटसाइड, मतलब पोटेशियम जाएगा इनसाइड से आउटसाइड, राइट। सो इन द रेस्टिंग कंडीशन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये चैनल दीज चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, राइट। सो देखो, सोडियम बाहर में ज्यादा अंदर में कम, पोटेशियम अंदर में ज्यादा बाहर में कम। सो सोडियम एंड पोटेशियम चैनल क्या ट्राई करेंगे, ये तो चैनल ट्राई करेगा कि दोनों का लेवल, दोनों का सोडियम एंड पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड में एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में चले आए। लेकिन हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़े हैं कि लिविंग बॉडी और द बॉडी इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, राइट। सो बॉडी ऑलवेज मेंटेन करता है कि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट में रहने के लिए। लेकिन अगर सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे ही अंदर और बाहर जाते रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो एक इक्विलिब्रियम लेवल में चला जाएगा, दोनों का ही दोनों पर्टिकुलर कैटन ही इक्विलिब्रियम कंडीशन में चला जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में चला जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ द एनी काइंड्स ऑफ आयन, राइट। सो इसके लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पर्टिकुलर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, राइट। तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का फंक्शन क्या होता है, देखो, बाय यूटिलाइजिंग द एटीपी, बाय यूटिलाइजिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, क्या होता है इधर, 3 सोडियम विल गो टू द आउटसाइड एंड उसके बदले में क्या होगा, 2 पोटेशियम will go to the inside। so 3 सोडियम बाहर जाएगा and 2 पोटेशियम अंदर आएगा। this will compensate the ion transfer through the leaky channel, right। so यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप फंक्शन क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप compensate the ion transfer of the leaky channel, क्योंकि leaky channel are always open, leaky channel कभी क्लोज नहीं होते, तो leaky channel आर हम लोग क्या बोल सकते हैं, this is one kinds of passive transport, इसको हम लोग one kind of diffusion भी बोल सकते हैं कि passive transport, but these are called the facilitated diffusion because these are the channel protein। जब channel protein से without utilizing any energy आयन ट्रांसफर होता है तब हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोल सकते हैं। एंड दीज आर द पैसिव, व्हाई दिस इज कॉल्ड द पैसिव, बिकॉज यहाँ पे कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। लेकिन बट द सोडियम पोटेशियम पंप इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे one ATP मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करके 3 सोडियम विल गो टू द आउटसाइड एंड 2 पोटेशियम इज गोइंग टू द इनसाइड, राइट। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे दिस इज द कंडीशन दैट इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन में वोल्टेज होता है -70 वोल्ट,
क्या ओपन रहता है, सोडियम का एंड पोटेशियम का जो लीकी चैनल वो ओपन रहते हैं एंड दिस आयन ट्रांसफर, सोडियम आता है कहाँ, सोडियम विल गो टू द इनसाइड एंड पोटेशियम विल गो टू द आउटसाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, right? And the sodium potassium ATPase or the sodium potassium pump will compensate the ion transfer of the leaky channel by throwing three sodium molecule outside and the 2 potassium molecule inside, right? तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? Is there any problem? Hope there is any no problem in this particular resting membrane. तो अभी हम लोग जाते हैं क्या, अभी हम लोग जाएंगे कहां, डीपोलराइजेशन, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, राइट? तो डीपोलराइजेशन में तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं क्या क्या हुआ है। देखो इधर में इनसाइड में क्या है, नेगेटिव, आउटसाइड में क्या है, पॉजिटिव। एक बार लिख लेते हैं, दिस इज द इंटरसेलुलर फ्लूइड रीजन एंड दिस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रीजन, राइट? सो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे दीज आर द सोडियम चैनल एंड दिस इज द पोटेशियम चैनल, दीज आर द लीकी चैनल, लीकी चैनल्स आर ऑलवेज ओपन। तो लीकी चैनल ओपन होते हैं तो क्या होता है, Na plus is going inside and the K plus is going outside, लेकिन कौन सा चैनल क्लोज है, these channels, these are the voltage gated channel। ये कौन सा चैनल है, voltage gated sodium channel and the voltage gated potassium channel, right? Okay, and this is the ATPase। ATPase से क्या होता है, 3 sodium is going to outside and 2 potassium is going to inside with utilizing the 1 molecule of ADP, right? ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन में होता है। लेकिन अभी क्या हुआ, सोडियम कंसंट्रेशन is higher in the inside, right? So सोडियम कंसंट्रेशन अगर हायर हो जाता है इनसाइड में, that will particularly open up the voltage gated sodium channel, right? So voltage gated sodium channel open up हो जाएगा कब, जब सोडियम कंसंट्रेशन is higher in the inside region, right? So क्या होगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल अगर ओपन हो जाएगा तो बाहर से और भी सोडियम आएगा कहां, इनसाइड द सेल, राइट? सो सोडियम कंसंट्रेशन इज क्वाइट इंक्रीजिंग इन द इनसाइड रीजन। लेकिन अभी कौन सा चैनल क्लोज है, अभी पोटेशियम चैनल इज क्लोज, राइट? ओके, सो यहां पर क्या होता है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर देखो सोडियम कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, ओके? तब जब सोडियम कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, द वोल्टेज विल कम अप टू द प्लस 30 millivolt, the voltage will come up to the plus 30 millivolt from minus 70, then the sodium potassium ATPase will be stopped or this particular pump will be shut off, ये पंप क्लोज हो जाएगा, राइट? तो पंप क्लोज होने से क्या होगा, अभी तो कोई कॉम्पेंसेट करने वाला चीज नहीं है, क्योंकि अभी 3 सोडियम और 2 पोटेशियम ये जो बात हो रहा था ये बंद हो चुके हैं, राइट? सो जब ये प्लस 30 मिलीवोल्ट तक वोल्टेज आ जाएगा, तभी ये थ्रू दिस पर्टिकुलर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, सोडियम विल go inside, then the sodium concentration is efficiently higher in the intracellular fluid region, right? So the polarity of
a particular, the polarity of the particular intracellular fluid is changing into positive. सेम वे में क्या हो जाएगा, सेम वे में the polarity of the extracellular fluid or outside the exoplasm will be negative. सो यहां पे क्या हो रहा था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन में क्या था, पोलराइज्ड कंडीशन, लेकिन यहां पे क्या हो गया, यहां पे पोलैरिटी चेंज हो गया. दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डीपोलराइज्ड कंडीशन, डीपोलराइज्ड स्टेट और डीपोलराइज्ड कंडीशन. सो इन केस ऑफ डीपोलराइज्ड कंडीशन द वोल्टेज विल बी +30 मिलीवोल्ट, राइट. अगर हम लोग एक ही एक्सन का दोनों पर्टिकुलर सेगमेंट ले ले तो क्या होगा, दिस विल बी द ए सेगमेंट एंड दिस वन विल बी द बी सेगमेंट, राइट. लेकिन ए सेगमेंट में क्या होगा, ए सेगमेंट में क्या हुआ है, ए सेगमेंट में पर्टिकुलर डीपोलराइजेशन हुआ है, देखो. लेकिन ये जो बी सेगमेंट है, इसमें तो अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है. ये ऑलरेडी अभी हम लोग यहां पर भी लिख लेते हैं Na प्लस K प्लस Na प्लस K प्लस, राइट. यहां पर भी क्या है, राइट. A portion of the particular axonal membrane or particular exoplasm is in depolarized condition. लेकिन particular जो B portion है, ये तो अभी भी मतलब polarized condition में है और resting condition में है, right. So यहां पर हुआ है change in the particular polarity, लेकिन यहाँ पे तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, पहले जैसा था वैसा ही है, रेस्टिंग कंडीशन में है. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव रीजन. लेकिन दिस ऑल अबाउट द करंट, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट फ्लो करता है कैसे, फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव रीजन, राइट. सो in the inside there is the positive ions or the polarity is positive in the inside region. So from this particular A region it will go to the B region in the inside and in the outside also क्या होगा, और the extracellular fluid में क्या होगा, this will go to the this region, clear. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो जब भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट से, एक पर्टिकुलर पोर्शन से पॉजिटिविटी और द पोलैरिटी विल गो टू द, उसका जो एडजेसेंट रीजन है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग नर्व इंपल्स कंडक्शन. सो द एक्शन पोटेंशियल इज कंसिस्टिंग ऑफ डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय द रीपोलराइजेशन. रीपोलराइजेशन हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी हम लोग जो चल रहा है दैट इज द डीपोलराइज्ड स्टेट. सो डीपोलराइज, एक पर्टिकुलर सेगमेंट डीपोलराइज होने के बाद उसका एडजेसेंट सेगमेंट में क्या होता है, नर्व इंपल्स कंडक्शन. इसको बोलते हैं क्या, नर्व इंपल्स कंडक्शन, राइट. तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर ये जो प्लस है ये अगर इधर जाएगा तो दिस विल ऑल्सो बी द प्लस, राइट. सो बाहर में क्या होगा, बाहर में ये पॉजिटिव आयन इधर आ रहा है तो ये क्या होगा, दिस
will be minus, clear, and here, and इसमें अभी क्या हो रहा है, इसमें इन द ए रीजन में क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। क्या रीपोलराइज में क्या था, पहले था, और एक बार हम लोग रिपीट कर देते हैं, पहले था रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन, राइट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन कंडीशन के बाद क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ डीपोलराइज कंडीशन, राइट। सो डीपोलराइज कंडीशन के बाद क्या होगा, अभी हम लोग देखेंगे क्या, रीपोलराइज कंडीशन। ओके, तो देखो पहले ये दोनों हम लोग मार्क कर लेते हैं। दिस इज द ए रीजन, दिस इज द बी रीजन, राइट। तो ए रीजन से हम लोग लास्ट वाला स्लाइड में क्या देखे, ए रीजन से नर्व इंपल्स इज कंडक्टिंग इनटू द बी रीजन। सो बी रीजन में अभी क्या होगा, बी रीजन में अभी जो होगा, एक बार फिर से सब कुछ मार्क कर लेते हैं क्या क्या था इधर। यहां पे जो एटीपीएस ये तो बंद हो जाएगा क्योंकि इनसाइड विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड द आउटसाइड विल बी नेगेटिवली चार्ज, राइट। सो यहां पे क्या होगा, दिस एक बार पूरा मेरे साथ तुम लोग भी अगर कॉपी कर रहे हो इसको पूरा एक बार मार्क कर लो। These are the leaky channels potassium, these are the voltage gated sodium channels, and these are the voltage gated potassium channels. Same things also is applicable in here. This is the sodium channels, that is the leaky channel, this is the potassium channel, right. And these are the voltage gated sodium and this is the voltage gated potassium, ठीक है। इन डीपोलराइज कंडीशन में ये भी था, राइट। सो यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर ये जा रहा है डीपोलराइज कंडीशन में, मतलब ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए से बी में नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन और कंडक्शन हो रहा है। सो यहां पे हम लोग, ये तो ऑलवेज ओपन रहता है, राइट, लेकिन पोटेशियम चैनल अभी भी क्लोज है। ठीक है, तो दिस इज द डीपोलराइज स्टेट। ए से हुआ, बी जो हुआ, डीपोलराइज स्टेट में चला गया। सो लेकिन ए में फिर क्या होगा, देखो लीकी चैनल्स आर ऑलवेज ओपन, लीकी चैनल कभी क्लोज नहीं होते। कि लीकी क्यों बोलते हैं, ऑल टाइम लीक होते रहते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ लीकी। आफ्टर रीचिंग टू द प्लस 30 मिलीवोल्ट, आफ्टर रीचिंग टू द प्लस 30 मिलीवोल्ट, यहां पर क्या होता है, यहां पर इन द रीपोलराइज, व्हाई वी कॉल इट द रीपोलराइज कंडीशन, बिकॉज यहां पे क्या होता है, यहां पे sodium channels are closed, sodium channels are closed and potassium channels are open, right. So potassium channels are open, तो potassium channels अगर open होगा तो क्या होगा, potassium will go to the outside region, right. पोटेशियम विल गो टू द आउटसाइड रीजन, और पोटेशियम अगर आउटसाइड रीजन में जाएगा तो क्या होगा, इन द इंटरसेलुलर, हियर इज द इंटरसेलुलर फ्लूइड एंड दिस इज द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। सो द इनसाइड विल बी, अंदर से कैटायन बाहर जा रहा है तो इनसाइड विल बी अगेन नेगेटिव and the outside will be again positive, right. फिर देखो पोटेशियम चैनल वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल है, वो पर्टिकुलर एक वोल्टेज अचीव होने से ओपन हो जाता है, राइट। सो डीपोलराइजेशन के बाद जब प्लस 30 मिलीवोल्ट हो गया, उसके बाद सोडियम चैनल, दैट इज द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल विल बी क्लोज
and the voltage gated potassium channel will be open. After opening the voltage gated potassium channel क्या हुआ, potassium will move to the outside, तभी सोडियम चैनल बंद हो चुके हैं, राइट. And the polarity of the membrane is going to प्रीवियसली क्या थे, रिपोलराइज कंडीशन में. देखो एकदम रेस्टिंग कंडीशन में क्या थे, इनसाइड नेगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव, फिर उसी स्टेट में वापस जा रहे हैं. दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट द रिपोलराइज्ड. उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिपोलराइज्ड कंडीशन. रिपोलराइज्ड क्यों, पहले था अंदर माइनस बाहर प्लस, राइट. अंदर में पॉजिटिविटी ज्यादा और नहीं उल्टा, पहले क्या थे, पहले इनसाइड इज नेगेटिवली चार्ज, आउटसाइड इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब ही पर्टिकुलर इंपल्स आए, तभी इंपल्स आने के तुरंत बाद क्या हुआ, सोडियम चैनल्स voltage gated sodium channels will open and ATPase activity is stopped. Then sodium is moving to the inside region. So sodium inside region में आ रहा है, तो इनसाइड का वोल्टेज क्या होगा, इनसाइड का चार्ज विल बी प्लस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डीपोलराइज्ड कंडीशन. फिर क्या होता है, फिर एक टाइम बाद जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज अचीव हो जाते हैं, तब पोटेशियम चैनल विल बी ओपन एंड द सोडियम चैनल विल बी क्लोज्ड, राइट. सो पोटेशियम विल मूव टू द आउटसाइड रीजन एंड द charge will be revert back to the previous states. That's why we can call it the depolarized state. लेकिन पोटेशियम चैनल उतना इजीली ओपन भी नहीं होता है, उतना इजीली क्लोज भी नहीं होता है, राइट. सो आफ्टर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पोटेशियम तो बाहर ही जा रहा है. सो पोटेशियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम एक टिपिकल वोल्टेज रीच होने के बाद तभी बंद होते. तो अभी भी पोटेशियम चैनल खुला हुआ है. तो आफ्टर द रिपोलराइजेशन अगेन ए नेक्स्ट स्टेप आते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन तुम लोग पढ़ सकते हो. दैट इज कॉल्ड द हाइपरपोलराइजेशन, राइट. क्योंकि पोटेशियम चैनल उतना इजीली नहीं ओपन होता है, उतना इजीली क्लोज भी नहीं होता है. एक पर्टिकुलर लेवल अचीव होने के बाद, एक पर्टिकुलर वोल्टेज अचीव होने के बाद, द रिपोलराइज्ड कंडीशन विल अगेन गो टू द हाइपरपोलराइज्ड कंडीशन. हाइपरपोलराइजेशन मतलब और भी नेगेटिव. हम लोग एक इसके नेक्स्ट में जो पर्टिकुलर स्लाइड देखेंगे, उसमें एक ग्राफ देखेंगे, उसमें हम लोगों को और भी समझ में आ जाएगा. देन क्या होता है, देन ये एटीपीएस एक्टिविटी ए हाइपरपोलराइजेशन के बाद इट विल कम इनटू द रेस्टिंग कंडीशन एंड द ATPase activity is again started, right. So these all, so action potential is comprising of the depolarization followed by the repolarization. इसके बाद अगर तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, एकदम मक्खन जैसा लगेगा. लेकिन these all आर थोड़ा डिटेल्स है, इसमें हम लोग थोड़ा डिटेल्स करके बोले हैं ये पूरा चीज. तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, ओके. तो in this particular slide we can see the particular graphical representation of action potential. तो एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या ग्राफिकली देख रहे थे, क्या क्या होता है. तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस में है टाइम, और वाई एक्सिस में जो है दैट इज द पर्टिकुलर वोल्टेज. तो एक्स एक्सिस में है टाइम एंड वाई एक्सिस में है वोल्टेज, राइट. सो यहां पर क्या होता है, देखो हम लोग क्या देखें, -70 मिलीवोल्ट में, -70 मिलीवोल्ट में क्या होता है, -70 मिलीवोल्ट इज कॉल्ड द रेस्टिंग स्टेट, राइट. सो यहां पर एक स्टिमुलस अप्लाई हुआ, तो कोई भी स्टिमुलस अप्लाई होते हैं तो क्या होता है, अंदर में sodium ions are going into the inside. So sodium ions are going into the inside. That's why the charges from the negative or the particular voltage of the axolemma or the axonal membrane is increasing from the negative
टुवर्ड्स द पॉजिटिव। अप टू कहां जाते हैं, +30। यहां पर ये जो लेवल है कहां जाते हैं, दिस इज गो टू द +30 मिलीवोल्ट, राइट। तो +30 मिलीवोल्ट तक हम लोग बोलेंगे क्या, डीपोलराइजेशन। क्यों, यहां पर क्या था, माइनस इनसाइड चार्ज वाज माइनस, अभी क्या हो गया है, इनसाइड चार्ज वाज पॉजिटिव, राइट। तो पॉजिटिव होता है इसलिए हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन होने के बाद यहां पे क्या होगा, यहां पे सोडियम चैनल विल बी Na+ और द voltage gated Na+ channels will be closed and the K+ channel will be open, right? So K+ channels open होने के बाद K+ क्या आएगा, K+ जाएगा from the inside, it will go to the outside. So K+ अगर बाहर जाएगा तो इनसाइड में क्या होगा, इनसाइड में कैटायन क्वांटिटी is lower than the outside, so the inside or the particular membrane will be in the repolarized state. That's why we can call it the repolarization. And repolarization होने से क्या होगा, वोल्टेज फिर से पॉजिटिव से क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव होने के, मैंने क्या बोला था पिछले स्लाइड में, पोटेशियम चैनल उतना इजीली क्लोज नहीं होता है। तो एक पर्टिकुलर लेवल में, मतलब रेस्टिंग स्टेट में जाने के बाद और भी टाइम पोटेशियम चैनल खुला हुआ रहता है। तो पोटेशियम चैनल अगर खुला हुआ रहता है तो क्या होगा, और भी पोटेशियम आयन will go to the outside, then the voltage will also decrease into a particular, हम लोग लगभग बोल सकते हैं -90 मिलीवोल्ट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर पोलराइज, मतलब पोलराइजेशन होने के बाद भी और भी पोलराइजेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट द हाइपर पोलराइजेशन। तो हाइपर पोलराइजेशन होने के बाद तब क्या होगा, पोटेशियम चैनल और द स्पेसिफिक voltage gated potassium channel will close and the voltage will get back to the resting condition or the -70 millivolt. So right, so the action potential is comprising of depolarization followed by the repolarization. ठीक है, होप किसी को मतलब कुछ डाउट है, अगर कुछ मतलब किसी को तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी को और भी डाउट है, कोई क्वेश्चन करना है, ठीक है, कोई कुछ चीज समझ में नहीं आया है, तो यू कैन टेल अस इन द पर्टिकुलर कमेंट बॉक्स। सो next class, in the next class we are coming with another most interesting topic, and तब तक के लिए बाय। एंड सब लोग पढ़ते रहो, नीट तो बहुत जल्दी आने वाला है, सो तैयारी एकदम जम के होना चाहिए। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।